Welcome back, and let us today try to complete whatsoever we have left in our last class. So, yesterday, what we were doing was we were talking about locks in order to implement the concept of concurrency control. तो उस locks में हमने देखा था कि there are two types of locks possible. One is called a shared lock and another one is called an exclusive lock. तो shared lock होता क्या है कि हम उसमें सिर्फ पढ़ सकते हैं, और एक्सक्लूसिव लॉक क्या है जिसमें कि हम पढ़ लिख दोनों सकते हैं. सो और उसके बाद हमने कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स भी देखा था. वी हैव आल्सो सीन द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कि उस कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स तो हमने देखा था, और हमने एक वी हैव आल्सो सीन वन सिंगल ट्रांजैक्शन आल्सो जिसमें कि हम लोग लॉक अनलॉक यूज कर रहे थे. That also we have seen. So now today what we will do is we will try to see that how exactly the concurrency control manager grants the locks. किस तरह से वो grant करता है. Actually that is precisely what we would like to see. जो हम कल बता रहे थे कि all these transactions they make a request to the concurrency control manager, and then there it grants the lock. So let us see that how exactly we write those statements. That is what is important. Say we have T1, this is given there in the book of Korth, T2, and this one is concurrency control manager. ठीक है. So T1 ये पहला स्टेटमेंट इशू कर रहा है, लॉक X B. What is the meaning? That means it wants to have an exclusive mode lock on data item B. कोई data item B है जिसमें transaction T1 exclusive mode lock लेना चाह रहा है. As soon as it writes the statement, it goes to the concurrency control manager and it will check whether T1 can be given this lock X or not. We have already discussed कि ये given और not given ये कहां से देख रहा है. इसको ये इसके पास ये it is maintaining a chart जिसके अंदर ये दिया हुआ है. It is maintaining a chart जिसमें है कि कितने ट्रांजैक्शन अभी काम कर रहे हैं और इन ट्रांजैक्शन के पास कौन कौन सा लॉक है, बी के ऊपर किसी ने कोई लॉक लिया हुआ है या नहीं. So that means it is maintaining some kind of a matrix from where it decides कि whether this is to be granted to T1 or not. So then अगर properly होता है तो not in this line, you don't draw. हम just for an example तुमको हम दिखा रहे हैं, I am drawing this line, but don't draw this line you and here उसका एक line छोड़ के you can write grant X B T1. कहने का मतलब है ये कंकरेंसी मैनेजर के पास रिक्वेस्ट दिया, अगर उसको दिखा कि नहीं we can grant this lock, so what it will do is it will automatically grant this lock by giving this statement grant exclusive lock on data item B to transaction T1. That is the meaning of this statement. इस स्टेटमेंट का मीनिंग वही है कि grant exclusive lock to T1 on data item B. ओके. और जब तक ये ग्रांट नहीं मिलता तब तक ये कोई दूसरा मैनिपुलेशन ये डेटा आइटम बी पे ये नहीं कर सकता. सो वंस इट गेट्स द लॉक देन इट विल डू रीड बी. एक लाइन नीचे, इसके भी एक लाइन नीचे हम लिख रहे हैं बी कोलोन इक्वल टू बी माइनस 50. ओके, राइट बी. इसका काम हो गया अगर अनलॉक B. अनलॉक B. ओके, यहां पे ये क्या कर रहा है, लॉक S
A. What is the meaning? Lock SA कहने का मतलब है it is asking for a lock. It is asking for a shared mode lock on data item A. तो ये भी डेफिनेटली चूंकि इट इज आस्किंग, इट विल ऑल्सो गो टू द कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। और यहां पे अगर सब कुछ इसका जायज है तो इट विल राइट ग्रांट एस ए T2, यानी ये बोल रहा है कि ठीक है, शेयर्ड मोड लॉक ऑन डेटा आइटम ए ग्रांट कर दिया जाए टू द ट्रांजैक्शन T2 व्हिच इज रिक्वेस्टिंग दिस, एंड दीज एंट्रीज आर सेव्ड इन द कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर्स मैट्रिक्स, बिकॉज बाद में जब कोई भी लॉक मांगता है तो इट विल रेफर टू दीज स्टेटमेंट्स कि कौन सा लॉक किया हुआ है, कौन सा अनलॉक किया हुआ है। जैसे ये अनलॉक बी को किया तो ये लॉक जो है यहाँ पे उसका मैट्रिक्स में ये चला जाएगा कि दिस इज वेकेंट, item B is no more locked, so it maintains a database in itself, अपने आप में वो मेंटेन कर रहा है। So there then it writes read A, right, unlock A, काम हो गया इसका। unlock A, lock S B मांग रहा है रीड करने के लिए, तो यहां पे फिर आएगा ग्रांट S B T2। ये ग्रांट इसको इसलिए मिला क्योंकि यहां पे ये अनलॉक कर चुका है, ये अनलॉक हो चुका है, इसीलिए ये ग्रांट इसको, सॉरी, इसलिए ये ग्रांट इसको मिला यहां पे। अदरवाइज ये ग्रांट नहीं मिलता, लॉक एस भी करता तो इसको ये डिनाई कर दिया होता। सो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस इज द लॉक्स आर ग्रांटेड टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। दिस इज हाउ द लॉक्स आर granted to different transactions, right? तो इस तरह से हम लोग जब ट्रांजैक्शन को लिखते हैं तो we write them this way, ठीक है? So this is how we write the transaction T1, T2 and concurrency control manager को अलग से दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये लॉक मांगा जा रहा है। Okay, now there is something very interesting. Now the question is granting of lock. तो हम जानते हैं what is granting of lock. We want to see this. अच्छा, granting of lock जानने से पहले please note down certain definition. This is again given in the book, but still note down certain definition. ठीक है? Right on. We require that each transaction in the system follow a set of rules, called a locking protocol, indicating when a transaction may lock and unlock each of the data items, change the line, let T0, T1,
tn be a set of transactions, be a set of transactions participating in schedule S, participating in schedule S. हो ही सकता है एक शेड्यूल एस, शेड्यूल किसको बोलते हैं? इट इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस, T1 T2 T3 T4, चार पांच ट्रांजैक्शन मिला के देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन शेड्यूल. तो दैट इज व्हाट यू हैव रिटन. लेट T0 T1 T2 dot 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 Tn be a set of transactions participating in a schedule S. ठीक है? Okay, so that is they are participating in schedule S. Then, अच्छा, sorry, then को छोड़ो. We say that Ti precedes Tj in S, written Ti Tj. यानी इस तरह का लिखने का मतलब ये हुआ कि Ti जो है वो Tj से पहले आ रहा है. ट्रांजैक्शन Ti या T1 ये T2 है, तो ये ट्रांजैक्शन, ये स्टेटमेंट जो ट्रांजैक्शन T1 ये T2 से पहले आ रहा है. सो दैट इज व्हाट इट मींस. We say that Ti precedes Tj in capital S, written Ti and arrow to Tj, okay, comma, if there exists a data item, capital Q, that Ti has held lock mode A on Q, and Tj has held lock mode B on Q latter, and comp A comma B equal to false. If Ti precedes Tj, then that precedence implies that in any equivalent serial schedule, Ti must appear before Tj. Conflicts between instructions correspond to
correspond to a non-compatibility of lock modes. Again, change the para. We say that a schedule S is legal under a given locking protocol, if capital S is a possible schedule for a set of transactions following the rules of the locking protocol. We say that a locking protocol ensures conflict serializability if and only if for all legal schedules the associated this arrow, ये arrow दो, the associated relation is a cyclic associated relation is a cyclic. Okay, let us try to understand the meaning. Fine. You see, ये जो है these are certain definitions. ठीक है, बोल रहा है कि if T0, T1, Tn be a set of transactions participating in a schedule S, ये तो हम लोग जानते हैं. We say Ti precedes Tj. Ti Tj से पहले, इसको कैसे दिखाएंगे हम? इस तरह से दिखा देंगे भाई कि Ti Tj से पहले. Okay. Now, written if there exists a data item Q such that Ti has held lock mode A on Q and Tj has held lock mode B on Q latter, and compatibility A and A comma B is equal to false. ठीक, तो Ti और Tj, ये Ti Tj से पहले आया है, कैसे हम बता पा रहे हैं? एक एरो से बता रहे हैं, और ये एरो कुछ इस तरह से है कि माने हमारे पास क्या है, मान लो T1 है, T1 यहां पे बोल रहा है क्या, लॉक ग्रांट या लॉक, सिंपल हम लॉक के लिए मांग रहे हैं, लॉक एस ऑन ए. ठीक है, और T2 उसी आइटम पे X मांग रहा है, लॉक X ऑन A, ये मांग रहा है. ऑन यू नो S एंड X जो है, हमारा जो कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स था
ये जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें ये अगर S है, ये S है, X है और X है, तो दिस वाज ओनली ट्रू और बाकी सब फॉल्स है। ये नहीं हो सकता है S और X के साथ। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये अनलॉक करेगा, देन ओनली इट कैन अचीव ए लॉक। सो ये दैट इज व्हाई वी से TI प्रीसीड्स TJ, यानी कहने का मतलब है इस तरह का कंडीशन है कि इसका लॉक पहले मिला है, ये उसी आइटम पे लॉक बाद में ले रहा है, ठीक है। तो वैसे और इन दोनों का कंपैटिबिलिटी जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो दिस इज TI प्रीसीड्स TJ, ओके। एंड इफ TI precedes TJ, then that precedence implies that in any equivalent serial schedule, TI must appear before TJ. ये लॉक, ग्रांट लॉक का, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ये लॉक अगर इसको पहले लिया हुआ है, ये कुछ काम कर रहा है, तो इसका अगर सीरियल इक्विवेलेंट शेड्यूल बना है या कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल बना है, ठीक है। सो देन वी से कि इन दैट शेड्यूल एस डैश, तब भी इस लॉक को पहले आना है। ये रूल है लॉक ग्रांट करने का, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन डाउन दिस डेफिनेशन, ओके। देयर यू हैव रिटन, we say that a schedule S is legal under a given locking protocol if capital S is a possible schedule for a set of transactions following the rules of the locking protocol। यही रूल्स है लॉकिंग प्रोटोकॉल का, ये अगर पहले है तो ये होगा, ये अगर लॉक लिया हुआ है तो चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स टू अलाउ द लॉक टू टेक प्लेस। लेकिन we say that a locking protocol ensures conflict serializability if and only if ये जो लॉकिंग प्रोटोकॉल सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब जो पढ़ रहे हैं, these will definitely allow us to attain conflict serializability, ठीक है। हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा काम है कंकरेंट शेड्यूल चलाना। कंकरेंट शेड्यूल चलाने से हमारा थ्रूपुट ऑप्टिमाइज होगा, लेकिन कंकरेंट शेड्यूल कुछ इस तरह से चलाना होगा ताकि उसका आउटपुट सीरियल शेड्यूल जैसा रहे। तो अगर सीरियल शेड्यूल जैसा उसका आउटपुट रहता है और उसको हम ऐसा थियोरिटिकली सोच सकते हैं कि दिस विल वर्क एज अ सीरियल शेड्यूल, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट को हटा हटा के अगर आई कैन स्वैप देम एंड आई कैन मेक इट इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल, देन वी कॉल इट दैट दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, वो तो हम पेन पेपर में कर रहे थे। सो उनको अचीव करने के लिए वी हैव दिस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो उसमें ढेर सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ एक पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। इसके अलावे भी है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, देयर आर सो मेनी अदर ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल, ढेर सारा, बट फॉर योर सिलेबस वी हैव दिस। अच्छा, लेकिन इसमें एक लास्ट लाइन लिखा हुआ था, or we say that a locking protocol ensures conflict serializability if and only if for all legal schedules the associated this arrow relation is acyclic। मतलब you know what, यहां इसमें हम लोग आएंगे, ये असाइक्लिक क्यों हम बोलना चाह रहे हैं। दिस इज देयर इन योर स्लाइड विच आई हैव ऑलरेडी पुट इन द योर LMS and it is there। Because I must say that this Rahul did a wonderful job by making this app and making this site, which is, I found it wonderful, and it's very easy to access। इतना झमेला करने का नहीं है। तो Rahul, if you can please put back these, you can download and put back these books and the slides also that I have given। I'm really thankful to few of the students, like Rahul is there, Gagan is there, Naman is there, Rishi is there, Amit was helping up earlier। They are also not only trying for their level best, they are trying to give enough help to the rest of the students also, so that in this pandemic situation, you mutually can help each other with the lectures, with the books। I am really, really grateful to these students। Thank you, my students, thank you very much। Now, let's come back to this। तो ये जो रिलेशन असाइक्लिक है, ये असाइक्लिक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे इसको। फॉर द टाइम बीइंग हम अभी बात नहीं कर रहे हैं असाइक्लिक क्यों है, तुरंत ही इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स।
ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स। ये ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई। एक T1 है, यहां पे एक T2 है, ठीक है। T1 क्या कर रहा है? T1 का अपना काम शुरू किया, ये बोला कि भाई लॉक एस ऑन ए, ठीक है। तो ये कंकरेंसी कंट्रोल हम नहीं बना रहे, बार बार हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये इसको लॉक मिल गया, ठीक है। और इधर T2 जो है ये बोला है लॉक एक्स ऑन बी, ओके फाइन। अब ये क्या किया? लॉक एक्स ऑन बी कर दिया, ठीक है, ओके। नाउ नो, नॉट लॉक एक्स, लॉक एक्स में वो चीज नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इट इज लॉक एस ऑन बी, ठीक। अब ये क्या कर रहा है? इसका ए में काम हो गया, इट वांट्स लॉक एक्स ऑन बी। T1 मांग रहा है एक्सक्लूसिव लॉक ऑन आइटम बी, लेकिन ये शेयर्ड लॉक जो है ये T2 के पास है और ये कंपैटिबल नहीं है, तो इसको लॉक नहीं मिलेगा। ये वाला लॉक जो है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर इसको नहीं देगा, इसको वेट करवाएगा। कब तक वेट करवाएगा? जब तक ये अनलॉक नहीं कर दे बी को। T2 जब तक अनलॉक नहीं कर दे तब तक इसको वेट करवाएगा। लेकिन परेशानी यहां पे नहीं है। परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? यहां पे एक T3 है। T3 बोला लॉक एस बी। यू जस्ट टेल मी T3 को ये लॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा? एनीवन प्लीज टेल मी, ये लॉक T3 को मिलेगा या नहीं मिलेगा? T1 को नहीं मिलेगा, दैट इज ऑल राइट। T2 T3 को मिलेगा या नहीं मिलेगा? एनीवन? यस सर। मिलेगा, यस सर, क्योंकि वो शेयर्ड लॉक है। क्योंकि वो शेयर्ड लॉक है और कंपैटिबिलिटी दोनों का ट्रू है। परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू। ओके, इसको ये लॉक मिल गया, ये यहां बैठा हुआ है, ठीक। एक तो T4 आया, ये बोला लॉक एस बी, इसको भी मिल गया। अब इसको भी मिल गया लॉक। और ये T1 जो है यहां मांगा हुआ था, ये अभी बैठा हुआ है। तो ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टारवेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टारवेशन, यानी इस ट्रांजैक्शन को तुम भूखे मार दिए हो, इसको दे ही नहीं रहो लॉक। और T2 T3 T4 इन लोग आपस में फुटबॉल खेल रहा है बी के ऊपर लॉक लेके, और ई बेचारा यहां बैठा हुआ है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं भाई स्टारवेशन है, दिस इज स्टार्व्ड, मर जाएगा। कितना देर तक ये प्रोसेसर में रहेगा? इसका पूरा काम धंधा रुका हुआ है, तो इट विल डाई। तो दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ स्टारवेशन, भूखा मर गया, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इस तरह का स्टारवेशन हमको होने नहीं देना है, बिकॉज दिस आर पॉसिबल। लगातार T1 T2 T3 T4 ये आता जा रहा, तो कैसे लॉक को ग्रांट करें? लॉक को ग्रांट करने के लिए हमारा था ये सब कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, वो बेचारा कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स देख रहा है और देख देख के लॉक ग्रांट कर रहा था। ऐसा शुरू करेगा तो स्थिति हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा तो ये गया काम से दिस T1। सो देन there can be, you may get a short question on this, explain what is starvation in case of granting of locks, ठीक है। इसका आंसर प्रिपेयर करो, जस्ट नोट डाउन। स्टारवेशन के बारे में नहीं लिखा रहे, इट इज गिवन देयर इन द बुक, सो देयर you can just note down. We can avoid starvation of transactions. We can avoid starvation of transactions by granting locks, by granting locks as follows, by granting locks as follows. Full stop. When a transaction Ti, when a transaction Ti requests a lock,
on a data item capital Q in a particular mode capital M, in a particular mode capital M. M का मतलब क्या हुआ? यहां दो चीजें, या तो शेयर्ड लॉक या एक्सक्लूसिव लॉक. In a particular mode capital M, comma, the lock is granted, the lock is granted, provided that, point number one, there is no other transaction, there is no other transaction holding a lock on capital Q in a mode that conflicts with M, that conflicts with M. ठीक है? When a transaction Ti requests a lock on a data item Q on a particular mode M, the lock is granted provided that there is no other transaction holding a lock on Q in a mode that conflicts with capital M. That is, ये तो है ही, definitely conflict करेगा तो नहीं है देगा. That is there. Point number two, there is no other transaction. There is no other transaction that is waiting for a lock on capital Q, on capital Q, and that made its lock request before Ti, before Ti. मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट स्टार्वेशन हटाने के लिए है. T1, T2, ये कुछ था यहां पे, दिस इज टेकिंग दिस एज अ लॉक S on B, and it is asking for lock X on B. ये वेट करेगा बिकॉज ये अनकंपैटिबल है, लेकिन 3 जब मांगा लॉक S on B, तो तब क्या हुआ? ये पॉइंट नंबर 2 आ रहा है. जहां ये मांगा तो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर ये देख रहा है देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन दैट इज वेटिंग फॉर अ लॉक ऑन क्यू. ठीक है? तो यहां उसको दिखा कि देयर इज अनदर ट्रांजैक्शन वेटिंग फॉर अ लॉक इन द सेम डेटा आइटम बी, एंड दैट मेड इट्स लॉक रिक्वेस्ट बिफोर टीआई. यानी यहां टीआई करने का मतलब ये जो अभी आया, इससे पहले ये यहां पे इशू किया है स्टेटमेंट, उससे पहले ये T1 जो है उसको इशू कर चुका है. दैट मींस दिस इज ऑलरेडी वेटिंग, सो दिस शेयर्ड लॉक विल नॉट बी ग्रांटेड टू दिस. इसको स्टार्वेशन से बचाने के लिए, ओके, इसको स्टार्वेशन से बचाने के लिए अनलॉक करना तो है ही, लेकिन ये लॉक 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 होते चल जाता, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा था, बट दिस वाज हैपनिंग, प्रोपागेटिंग. इसको स्टार्वेशन को रोकने के लिए ये चीज हम वहां पे डाले हैं, दैट देयर इज नो ट्रांजैक्शन दैट इज वेटिंग फॉर अ लॉक ऑन क्यू. यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे हैं, दो इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज किए, एंड दैट मेड इट्स लॉक रिक्वेस्ट बिफोर टीआई. तो लॉक रिक्वेस्ट बिफोर टीआई अगर किया, यानी कहीं ना कहीं पे जब ट्रांजैक्शन सब आ रहा है तो उसका टाइम भी जो है नोट किया जा रहा है. सो उसका टाइम भी जब नोट किया जा रहा है, दैट इज व्हाट इज अनदर प्रोटोकॉल कॉल्ड टाइम स्टैम्प based protocol, time stamp based
protocol. So this protocol is also there to grant of locks कि किस हिसाब से किस टाइम में कौन आ रहा है. That means जैसे जैसे transaction आ रहा है, the time information is also stored. Okay. So there you just note down, we may ensure. तो या एक चीज before you write, तो हमने क्या किया, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे थे, काहे के लिए, टू एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है, तो हम देखें कि लॉक्स किस तरह से ग्रांट हो सकता है. दो लॉक है, वन इज शेयर्ड मोड, अनदर वन इज एक्सक्लूसिव मोड. ये दोनों लॉक हम ग्रांट कर सकते हैं. लॉक कैसे मिलता है, कंकरेंसी मैनेजर देता है. कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर लॉक दे रहा था तो एक परेशानी आ गया था, स्टारवेशन वाला. तो स्टारवेशन वाला जो है उसको हम इस तरह से दूर करते हैं, हमने दो रूल लगा दिया. ओके. तो इसके अलावे भी देयर इज दिस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल तुम्हारे में है नहीं, बट जस्ट यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. ओके, यू जस्ट नोट दिस डाउन. उसी को हम लिखा रहे थे, वन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टू फेज locking protocol. Okay, so there you just note, a protocol that ensures serializability is the two-phase locking protocol. This protocol requires that each transaction issue lock and unlock requests in two phases. इसका कारण ये है, बिकॉज यू नो व्हाट, ये इसको डालना इसलिए पड़ा बिकॉज ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स, ये जो हम देख रहे थे ना, दिस शेड्यूल, ओह दिस इज गॉन जा. एनीवे, हम जो शेड्यूल देख रहे थे, रिमेंबर T1, T2 और ये कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर वाला. तो देयर व्हाट वी वर डूइंग वाज, वी वर राइटिंग कि यहाँ पे रीड है, यहाँ पे फिर एक्सक्लूसिव लॉक है, ये कर रहा. इफ यू स्टडी द बुक ऑफ कॉर, यू विल फाइंड कि ये वाला जो शेड्यूल हम बना रहे थे, इफ आई फॉलो द शेड्यूल, दैट गिव्स अस एन अनकंसिस्टेंट वैल्यू. You should go through that portion in the book. इसको जरूर से पढ़ लेना. वो हम जहां पे ये वाला दिया हुआ था, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर एक्सेट्रा, उस चैप्टर में ही ये दिया हुआ है कि दिस गिव्स राइज टू अन इनकंसिस्टेंट शेड्यूल. हम ये तो तुमको हम समझा रहे थे कि कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर किस तरह से ग्रांट कर रहा है, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन बहुत पहले अनलॉक भी कर दे रहा है ना, इन हेस्ट, कि अच्छा मेरा काम हो गया अभी इसको खाली कर देते, तब भी इट में गिव राइज टू इनकंसिस्टेंसी. दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम. तो ये टू फेज प्रोटोकॉल, लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है, उस चीज को हैंडल कर रहा है. दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंस. उसको अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट कि कैसे वो ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स में पहले लॉक को हटा देने से भी दिक्कत हो जा रहा है, इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल गिवन, जिसको हम बना रहे थे. हम तुमको समझाने के लिए बना रहे थे, बट इन द बुक इट इज मेंट गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे लॉक पहले खोल देने से भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा.
सो दिस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल बोल रहा है कि नहीं, उसको हम समझाते हैं, पर कैसे समझेगा कि पहले खोलना है कि बाद में खोलना है? ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर. सो ये खोज के निकालना कि देयर कैन बी टू टाइप्स. Okay. So one protocol that ensures serializability is the two-phase locking protocol. This protocol requires that each transaction issue lock and unlock requests in two phases. So number one is growing phase. Growing phase. Right on. A transaction may obtain locks. The transaction may obtain locks, but may not release any lock. But may not release any lock. यानी उसको जो जो चाहिए उस पर लॉक वो लेता चला जाएगा, लेकिन अभी अनलॉक नहीं करेगा. ठीक है. तो growing phase, a transaction may obtain locks but may not release any lock. Number two, that is called shrinking phase. Shrinking phase. उसमें लिखो श्रिंकिंग. ग्रोइंग माने जब ट्रांजैक्शन शुरू करने जा रहा है, श्रिंकिंग माने अब वो खत्म करने जा रहा है, कैलकुलेशन वगैरह हो गया, अब वो हटते जाएगा. दैट इज व्हाट इज श्रिंकिंग फेज. अ ट्रांजैक्शन में रिलीज लॉक्स. A transaction may release locks, but may not obtain any new locks. Any new locks. ठीक है. So this is what is your लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. तो इसमें बोल रहा है कि भाई ये परेशानी हो रहा था कि कब लॉक लेगा कब लॉक छोड़ेगा. बोला नहीं, पहले जब ग्रोइंग फेज है, बिना कैलकुलेशन करने से पहले जब हम अंदर जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है, जितना भी लॉक्स चाहिए सब ले लो. अब ले लेने के बाद क्या है, उसके बाद जब तुम्हारा कैलकुलेशन हो उस समय तुम अनलॉक नहीं करोगे जब ग्रो करोगे. एंड नाउ देन कम्स द श्रिंकिंग फेज. उस समय यू स्टार्ट अनलॉकिंग, उस समय कोई नया लॉक मांगोगे नहीं. तो दैट इज हाउ यू आर ट्राइंग टू पुट अ बैलेंस बिटवीन दिस लॉक्स एंड अनलॉक्स. ठीक है. Then there is another protocol that is there in your syllabus. That is what is called time stamp based protocols. That is what is called time stamp based protocols. Now time stamp based protocol हम अभी समझा रहे थे कि सीरियलाइजेबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे. तो ये हमको देखना होगा कि कौन सा पहले आया, कौन पहले लिखना चाहता है, कौन पहले पढ़ना चाहता है. दैट मीन्स हम एक टाइम एसोसिएट कर दे रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई किसको पहले देना है, कौन हमसे आगे आया है. ऑल दिस थिंग्स हमको टाइम से पता लग जाएगा. सो देन ओके, नोट दिस वन लाइन. A method for determining the serializability order. A method for determining the serializability order is to select an ordering among transactions
in advance, among transactions in advance. The most common method for doing so is to use a timestamp ordering scheme. Is to use a timestamp ordering scheme. ठीक है? So now what I can see is हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं इस बात का कि ऑल राइट हमारे लिए हर तरह का लॉकिंग इंश्योर करना है, सीरियलाइजेबिलिटी एक्चुअली हमको इंश्योर करना है। तो एक तो नॉर्मल सिंपल लॉक से जाने गए थे, तो लॉक से जाने गए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था, लॉक से बहुत कुछ सेटल हो जा रहा है, लेकिन फिर स्टारवेशन वगैरह का प्रॉब्लम हुआ। तो स्टारवेशन को हटाने के लिए हमने 2 रूल बनाया, देखा गया कि ठीक है स्टारवेशन हो जाएगा, खत्म हो सकता है। लेकिन एक चीज और आया बीच में कि नहीं, अगर हम बहुत जल्दी अनलॉक कर दें तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट मी शो यू, जो हम बात कर रहे थे उसको लेट मी जस्ट टेल यू, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान भी है कि क्यों हम बोल रहे थे कि जल्दी अनलॉक कर देगा तो परेशानी हो जाएगा। जस्ट वॉच दिस, हम बार बार ये कंकरेंसी कंट्रोल वाला नहीं बना रहे, हम सिर्फ T1 T2 बना रहे। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज देयर इन द बुक बट लेट मी डिस्कस दिस। ये बोल रहा है लॉक XB, लॉक XB ले लिया, B पे लॉक, रीड B, हम कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर नहीं लिख रहे हैं, रीड B, B कोलोन इक्वल टू B माइनस 50, राइट B, अनलॉक B, अनलॉक B, यहां आ गया लॉक SA, लॉक SA, शेयर्ड मोड लॉक लिया, रीड A, रीड A, यस एनीवन, कुछ बोलना था? ओके, अनलॉक A, लॉक SB, लॉक SB, रीड B, अनलॉक B, डिस्प्ले A प्लस B, ठीक है? नाउ दिस इज, उससे आगे हमने फिर यहां पे अगर हम जाते हैं तो इट इज लॉक XA, रीड A कोलोन इक्वल टू A प्लस 50, राइट A, अनलॉक A, अनलॉक A। ओके, नाउ वॉच, अगर A के पास A हैज 100 रुपी एंड B हैज 200 रुपी, ठीक है? A हैज 100 रुपी एंड B हैज 200 रुपी। तो नाउ यहां से क्या पढ़ रहा है? B को पढ़ रहा है, B इज B माइनस 50, तो B का वैल्यू हो गया 150 रुपीज, B इज 150, राइट B को लिख डाला, अनलॉक B कर दिया, लॉक SA, A का वैल्यू कितना पढ़ लिया? 100, अनलॉक A हटा दिया, SB को पढ़ा, तो B का वैल्यू कितना पड़ेगा? 150, ये राइट किया है तो B का वैल्यू 150 पढ़ रहा है, आम सॉरी मैंने यहां नहीं पढ़ रहा, इस जगह पे पढ़ रहा है, लॉक B, रीड B में पढ़ रहा है 150, अनलॉक B, डिस्प्ले A प्लस B, तो डिस्प्ले A प्लस B कितना कर लिया? A प्लस B का वैल्यू कितना हो गया? ₹250 रुपीज।
ठीक है, बट दिस, अच्छा इसको पूरा कर लेते हैं, एक्स ए। अब फिर ए को पढ़ें तो ए का वैल्यू कितना है 100, रीड ए का वैल्यू पढ़ लिया 100, ए प्लस 50 तो 150 रुपीज हो गया ए में, राइट ए का वैल्यू हो गया 150। ठीक है, तो ए का वैल्यू 150 हो रहा है यहां पे, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, अनलॉक ए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां हम इसको डिस्प्ले किए हैं यहां, यू सी द कंसिस्टेंसी, ए प्लस बी का वैल्यू जो है, हमको एनी टाइम टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इट हैज गॉट टू बी 300, इट हैज गॉट टू बी 300। लेकिन यहां ये अनलॉक करके बैठ गया था कि इसको ये लॉक मिल गया, ये लॉक मिल गया, इसको पढ़ के उसका वैल्यू डिस्प्ले कर दिया हड़बड़ी में। यहां तक अगर चलने देता, उसके बाद ये डिस्प्ले स्टेटमेंट होता, देन इट विल गिव यू अ कंसिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफ 300 रुपीज। लेकिन ये करने नहीं दिया, ये कर क्या दिया, ये लॉक को पहले छोड़ा, ये नहीं छोड़ता तो इसको मिलता नहीं, ये लॉक नहीं छोड़ता इसको नहीं मिलता, तो ये काम ये नहीं कर सकता था। सो दिस गिव राइज टू एन इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट। सो इस तरह का मटेरियल को हटाने के लिए ही दे केम विद टू स्टेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कि भाई ग्रोइंग फेज में सब लॉक ले लो, छोड़ो मत। ठीक है, यहां इसको पूरा हो जाने देते, फिर छोड़ते, अब फिर सीरियलाइजेबिलिटी देखते, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कैसे होगा। सो दैट वाज सपोज टू बी सीन, बट देन दिस अनलॉक्ड इट अ बिट अर्लियर। ठीक है, इसको अनलॉक जो है बाद में करना था, अदरवाइज दिस इज द प्रॉब्लम। That is why this two phase came into growing phase and shrinking phase came into this came into existence. नहीं तो इसको एग्जिस्टेंस में आने का कोई चक्कर ही नहीं था, जरूरत नहीं था। तो इस लॉकिंग पार्ट के बाद हम लोग पढ़े कि नहीं, ठीक है, इसके अलावा भी तो ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज कर लिए, लेकिन इसके अलावा भी हम टाइम स्टैंप लगा सकते हैं। तो सिंपल सा उसका जो नाम है टाइम स्टैंप, टाइम स्टैंप मतलब है क्या, इट्स अ ठप्पा लगा रहे हैं, a stamp with the time included in it. ठीक है, so just write down us 3-4 lines, उसके बाद हम लोग we will do it next day. Just note down before I conclude this class. Time stamps, time stamps. With each transaction, TI in the system, each transaction TI in the system, we associate a unique fixed timestamp, denoted by TS, TI, denoted by TS, TI, full stop. This timestamp is assigned by the database system, before the transaction TI starts execution. Before the transaction TI starts execution. ठीक है, एक ट्रांजैक्शन का बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट का नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम ट्रांजैक्शन का बात कर रहे हैं। यहां पे टाइम स्टैम्प दिए हैं TS TI, और ये एग्जीक्यूशन होने से पहले इसको दे दिए कि लो अब तुम्हारा ये टाइम है, तुम आए हो इसी समय। देन फुल स्टॉप के बाद if a transaction TI has been assigned timestamp TS TI
timestamp TSTI and a new transaction TJ and a new transaction TJ enters the system ठीक है, तो क्या होगा, डोंट जस्ट स्टॉप फॉर एवर। तो टीजे को भी एक तो मिलेगा टाइम स्टैम्प टीएस टीजे, ये मिलेगा। अब ये पहले आया, ये 10:19 में आया और ये वाला आया 10:21 में। सो डेफिनेटली ये वाला जो टाइम स्टैम्प है ये इससे छोटा होगा, 10:21 से ये छोटा होगा। तो यही हम लिखना चाह रहे हैं, एंटर्स द सिस्टम कॉमा कॉमा देन TSTI is less than TSTJ is less than TSTJ। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? दो तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो आई कैन यूज द सिस्टम क्लॉक, उस समय जो भी टाइम होगा उसको ले लेंगे सिस्टम क्लॉक, और नहीं तो क्या करेंगे, काउंटर चला देंगे। एक काउंटर चला देंगे कि भाई ट्रांजैक्शन सब आ रहा है, काउंटर शुरू हो गया, 1 2 3 4 काउंटर चल रहा है। ये जब आया था काउंटर का वैल्यू था 1, ये जब आया है काउंटर का वैल्यू है 3। तो अब भी जो है दिस TSTI जिसको कि टाइम स्टैम्प मिल रहा है 1, इसको टाइम स्टैम्प 3, देन ऑल्सो दिस इज ट्रू। जस्ट वन लाइन, there are two simple methods there are two simple methods for implementing the scheme. Number one, use the value of system clock, use the value of system clock as the timestamp when the transaction enters the system, when the transaction enters the system. Number two, use a logical counter, use a logical counter that is incremented after a new timestamp has been assigned and change the para. The timestamps of the transactions determine the serializability order. Determine the serializability order. Thus, if TSTI is less than TSTJ, then the system must ensure that the produced schedule कौन सा है भाई? सब शेड्यूल आया हुआ है, कंकरेंट है, इस तरह से शेड्यूल आया। अब इसको हम लोग सीरियलाइजेबल बनाने के लिए चेक कर रहे हैं ना। सो अगर एस था ये शेड्यूल, एक एस डैश तैयार होगा, एक शेड्यूल बनाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोड्यूस शेड्यूल। प्रोड्यूस शेड्यूल इज equivalent to
a serial schedule, in which transaction Ti appears before transaction Tj, ठीक. This is very easy to understand. I don't think you had any as such difficulty to understand to understand this part of timestamps. अब इसका जो प्रोटोकॉल है that we will see tomorrow कि what is the protocol, कि इसको अब कैसे लागू कर रहे हैं. This is kind of theoretical, you can just you get a long question. ये पूरा पोर्शन ही ऐसा है. I told you there are chances of framing 1 2 3 4 long questions. और इसके बाद फिर हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे that is called deadlock. बहुत very simple, very interesting, बड़ा आसान है उसको पढ़ना. तो you know the dates are out. semester 4 first week of July से एग्जामिनेशन होगा, so be prepared. इसके बाद हम लोगों को बहुत सारा वो स्टेटमेंट भी बचा हुआ है, DDL वाला स्टेटमेंट. अच्छा, लैब का असाइनमेंट जो हमको देना है वो हम उसमें डाल दे रहे हैं in the section 410B, उसमें डाल देते हैं. और लैब क्लासेस पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वी विल टेक लैब क्लासेस. 1-2 दिन हम लोग बैठ जाएंगे और वी विल इमीडिएटली सॉल्व. यस प्लीज बोलो. सर एग्जाम्स ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन? ऑनलाइन. अभी तक तो डिसाइडेड है ऑनलाइन है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक अ रिस्क. हाँ, आज के सिचुएशन में तुमको कहाँ से बुलाया जाएगा यहाँ. और डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या दिया जाएगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. लेकिन ऑनलाइन होगा. यू में अभी तक हमको जो मालूम है इट इज दैट. ठीक है कि एग्जाम्स विल बी held in online mode, but we are waiting for the government discretion. So thank you very much. We will meet tomorrow. इसको एक बार पढ़ लेना. We will see timestamp based ordering protocols tomorrow, and then we will see deadlocks, time permits. So thank you all for giving sound and patient listening, and बाकी